ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيًّا مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا الصلاة والسلام على رسوله الكريم صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم جسمه مقدس منور مطهر معطر منقوش في اللوح والقلم احمد المصطفى والقاسم محمد وعلى وصيه ووزيره وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين ضربات ولي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين نعرہ حیدری حاضرین گرام قدر و ارباب عقل و دانش، جس آیا مجیدہ کو سرمایہ سخن قرار دیا ہے یہ سورہ نور کی آیت نمبر 27 ہے۔ ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، اس وقت تک کسی کے گھر میں نہ داخل ہونا جب تک صاحب خانہ تمہیں اجازت نہ دے دے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے عرض کیا قرآن کی آیت کوئی روایت نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں، آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں کیا اور انشاءاللہ اسی سے فضائل آل محمد۔ اللہ نے فرمایا یہ اسلامی طریقہ ہے، قرآن کا طریقہ ہے کہ کسی کے گھر میں کیسے داخل ہونا ہے۔ یہ پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں قرآن کا کہ جب کسی کے گھر جائیں تو کیسے جائیں۔ قرآن نے کہا اس وقت تک کسی کے گھر داخل نہ ہونا جب تک صاحب خانہ تمہیں اجازت نہ دے دے۔ اچھا اب اجازت مل گئی ہے تو اگلا مرحلہ فَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، گھر والوں پر سلام بھیجنا۔ جو میں گزارش کر رہا ہوں پہنچ رہی ہے نا؟ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ پہلا بات اجازت دیں۔ اور کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والا نہیں نکلا تو دروازے کو دھکا دے کے اندر ہی چلے گئے۔ جو میں عرض کر رہا ہوں وصول فرما رہے ہو نا، یا وہ دروازے کے اندر سے شاہ صاحب اندر ایسے دیکھنا شروع کر دینا۔ قرآن نے کہا یہ غلط ہے۔ دروازے پہ دستک دو، 3 بار دستک دو، صاحب خانہ آتا ہے تو آپ اندر جائیں یا جو آپ کا مطالبہ ہے وہ کریں، اور اگر صاحب خانہ نہیں آتے تو آپ کو برا نہیں منانا چاہیے۔ قرآن کا حکم ہے آپ واپس چلے جاؤں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ دین کا پیغام ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ارشاد ہوا کہ صاحب خانہ سے اجازت لو، جب گھر والا اجازت دے دے اب اندر داخل ہو، اور داخل ہونے سے پہلے سلام کرو۔ اچھا یہ ہے کسی کے گھر داخل ہونے کا طریقہ۔ اب اپنے گھر میں کیسے آئیں؟ اپنے گھر میں آنے کے بھی اصول ہیں۔ تو پھر اللہ سورہ نور کی آیت نمبر 61 میں بولا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو اپنے اوپر سلام بھیجو۔ توجہ ہے نا؟ جب اپنے گھر میں جاؤ تو اپنے اوپر سلام بھیجو۔ اجازت کی تو ضرورت نہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، اب سلام بھیجیں اپنے اوپر۔
अब दुआएं होगी आप सबके मरहूमीन की रूह को, बिलखसूस चौधरी अशरफ साहब की रूह को इसाल किया और बाकी मरहूमीन को। अब अगली आयत हदिया करने लगा हूँ। ये अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम। मोमनो उस वक्त तक नबी के घर न जाना जब तक नबी तुम्हें इजाज़त न दे दे। मौला सलामत रखे, सदा सलामत रहो। अब बात थोड़ी सी बढ़ गई है, थोड़ा सा जागना। मौला आप सबको सलामत रखे। मेरी बातें इस काबिल नहीं हैं, आपकी समातें इस काबिल हैं कि मैं जो अर्ज़ करूँ उसे वसूल फरमाएं। अब बात थोड़ी सी बढ़ गई है। पहले अपने घर में जाने का तरीका, अब पहले किसी के घर में जाने का तरीका, फिर अपने घर में जाने का तरीका, अब नबी के घर में जाने का तरीका क्या है? तो कुरान ने कहा जब नबी के घर जाओ तो पहले नबी से इजाज़त ले लो। जब नबी तुम्हें इजाज़त दे तो फिर तुम नबी के घर दाखिल होना। अब हदिया करने लगा हूँ जुमला। अल्लाह ने फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 199 में इरशाद फरमाया, वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बयूता मिन ज़ुहूरिहा वलकिन्नल बिर्रा मन इत्तका तातुल बयूता मिन अब्वाबिहा। नेकी इसमें नहीं है कि घरों में तुम पिछावड़े से आओ, नेकी इसमें है कि घरों में दरवाजे से आओ। सदा सलामत रहो, सदा सलामत रहो। मौला तुम्हें सलामत रखे। जो जाग रहे हो हाथ बांध के अर्ज करो, जुमला ज़ाय न करना, पूरी तवज्जो रखना, इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। और दावे से बुखारी कह रहा है कि इस अंदाज में ये जुमला मिंबर पे पहली बार आप सुन रहे होंगे। अगर किसी हस्ती ने सुना है तो वो मुझसे सुना हुआ होगा और किसी से नहीं सुना होगा। अल्लाह ने कुरान में कहा कि जब तुम किसी के घर जाओ तो घर जाने में नेकी ये नहीं है कि तुम पिछावड़े से आओ, बल्कि नेकी ये है कि तुम मुत्तकी बनो और दरवाजे से आओ। इसीलिए तो मेरे रसूल ने कहा था, अना मदीनतुल इल्म बारिशन बाबुहा। सदा सलामत सदा सलामत रहे। मौला सबको सलामत रखे। अब बात आ गई है, पहुंच गई है फज़ैल तक। किसी के घर में जाओ तो साहिब खाना से इजाजत लो। और फिर सूरह बकरा ने कहा, वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा। नेकी ये नहीं है कि घरों में तुम पिछावड़े से आओ, बल्कि नेकी ये है वत्तकुल्लाह तातुल बुयूता मिन अब्वाबिहा। तकवा इख्तियार करो और घरों में दरवाजों से आओ। और मेरे नबी ने कहा, अना मदीनतुल इल्म बारिशन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अब जो नबी तक आना चाहता है पहले अली की गुलामी करे। सदा सलामत रहो। और सबको सलाम, सदा सलामत रहे। मेरे लफ्ज़ आपके हस्तियों तक पहुंच गए। पिछावड़े से ना हो, दरवाजे से आओ। अच्छी सी हदीस जो मैंने आपके सामने अर्ज की, इस हदीस में थोड़ी सी तब्दीली भी हुई। रसूल ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म बारिशन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। इजाज़त हूँ इस हदीस को दिखाऊँ, है इजाज़त है ना। अच्छा, इस हदीस में तब्दीली कैसे हुई? एक हस्ती का दौर आया, बात इशारात में होगी। एक हस्ती का दौर आया और उसने, मैं कुरान और हदीस से बात करता हूँ, इससे बाहर जाते ही नहीं हूँ। तो किसी को चुभे या ना चुभे उससे मुझे नहीं है, इख्तलाफी बात नहीं। दलील कुरान की आयत है, दलील हदीस है। हदीस में कहा कि एक हस्ती किसी के पास आई, उसने कहा कि हदीस में हमारा नाम आना चाहिए, हदीस में हमारा नाम। उसने कहा कोई बात नहीं, आ जाएगा। कहा कैसे आएगा? कहा रसूल ने ये ही नहीं कहा था, अना मदीनतुल इल्म बारिशन बाबुहा। नहीं, सिर्फ इतना नहीं, बल्कि रसूल ने आगे भी फरमाया था। उस बंदे का नाम लेके वो कहने लगा कि नबी ने आगे फरमाया था, फलाउन जिदारोहा, तू उसकी दीवारें हैं। तो समझ आ रही है ना? मौला आपको सलामत रखे। मैंने कहा बात इशारात में है। तू उसकी दीवारें हैं। अच्छा, बात मुख्तसर, इसका दौर भी गुजर गया, एक और दौर आ गया। उस दौर वाले ने भी कहा भाई कहीं हदीस में हमारा भी नाम आ जाए। उसी मकाम पे राब्ता किया ना। सदा सलामत रहे। बुजुर्ग मुझसे आगे जा रहे हैं, मैं इबादत के लिए अर्ज कर रहा हूँ। उसने कहा कि मेरा भी नाम आ जाए। यार ये भी कोई बात है, तुम्हारा भी नाम हदीस में है। का अच्छा कहाँ पे? का रसूल ने यहीं तक हदीस नहीं फरमाई, बल्कि आगे भी फरमाया, आना मदीनतुल इल्म बारिशन बाबुहा फलाउन जिदारुहा। अब उसका नाम लेके कहा, वो फलाउन सक़्फ़ुहा, तू उसकी छत है, तू उसकी छत। पूरी लिल्ला तवज्जो मेरी तरफ, तू उसकी छत है। अल्लाह के फजल से सारे
दोस्त जागे हुए हैं, तू उसकी छत है। अच्छा इसका दौर भी गुजर गया, एक और दौर आ गया। उसने कहा भी हमारा भी नाम हदीस में, कहा तुम्हारा भी नाम हदीस में है। कहा कहाँ पे? कहा रसूल ने इतना ही तो नहीं कहा, रसूल ने आगे भी कहा था। रसूल ने कहा ना मदीनतुल इल्म में बारिजन पाप हुआ, फलाउन चितार हुआ, फलाउन सख्त हुआ, और अब उसका नाम लेके कहा वो फलाउन मिजाब हुआ, तू उसका परनादा है। सदा सलामत रहे, तू उसका परनादा है। अब समझ आ गई ना हदीस में कैसी खुर्द बुर्द हुई, कैसी चेंजिंग हुई। दिल्ला लफ्ज़ ज़ाय न कर देना। हदीस में पहले कहा कि रसूल ने कहा मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, तू उसकी दीवारें हैं, तू उसकी छत है, तू उसका परनादा है। अब मैं नहीं कहता कौन दीवार है, कौन छत है, कौन परनादा है। बुखारी तो इतना जानता है कि साइल हमेशा दरवाजे पे आता है, चोर दीवार से आता है। सबका सलामत रखे, सदा सलामत रहे। साइल हमेशा दरवाजे पे आता है। नबी ने कहा अली दरवाजा है, साइल दरवाजे पे आता है, चोर दीवार से आता है। नबी इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। अब जो नबी तक जाना चाहता है पहले अली तक आए, पहले अली की गुलामी। चलो मैं लफ्ज़ बदल दूं, जो आलम आलम कहलवाना चाहता है नबी तक बाद में जाए, पहले अली तक तो आए, पहले अली तक तो आए। अच्छा मैं इसके बारे में आपको एक वाकया भी दे देता हूँ कि यही नहीं है कि ऐसे मैंने कह दिया। एक बंदे ने मौला कायनात से पूछा कि सरकार इरशाद फरमाए कि जिब्राइल हजूर के पास कितनी बार गए और आपके पास कितनी बार आए? आपके पास कितनी बार आए, हजूर के पास कितनी बार आए? कहा हजूर के पास 35,000 बार आए और मेरे पास 70,000 बार आए। जागोगे जागोगे तो बात बनेगी ना। मेरे पास 70,000 बार आए। कहा दलील क्या है? कहा तूने हजूर से सुना नहीं है, रसूल ने फरमाया था मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। भाई दरवाजे से ही गुजर के जाते हैं, दरवाजे से ही निकलते भी हैं। सदा सलामत मैं इल्म का शहर। अच्छा खबरदार, नबी के घर जब दाखिल होना, कुरान का ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला युज़न लकुम, उस वक्त तक नबी के घर न दाखिल होना जब तक नबी तुम्हें इजाजत न दे दे। अच्छा नबी की इजाजत जरूरी है, नबी की इजाजत जरूरी है। बड़ा बारीकी के साथ जहां से मसला है, यहाँ मैं बड़ी कोशिश करूंगा कि तरीके के साथ निकलूं। आपकी तवज्जुहात है मुझे निकाल दें। अल्लाह ने कहा नबी के घर उस वक्त तक दाखिल न होना जब तक नबी इजाजत न दे दे। अच्छा सवाल है पूरे मजमे की खिदमत में, नबी दफन कहाँ पे है? तवज्जो है ना, तवज्जो है ना। नबी दफन कहाँ पे है? अपने घर में। शायद मुझे समझाना नहीं आया। नबी कब्रिस्तान की जगह में नहीं, बुखारी दावे से कह रहा है। मौला आपको सलामत रखे, बुजुर्गों ने मेरी बात की तस्दीक की है। नबी कब्रिस्तान की जगह में नहीं, किसी रिफाई जगह में नहीं, अपने घर में। अच्छा वो रवायत देते हैं जो हमारे भाई बयान करते हैं। हमारे भाई फरमाते हैं कि नबी की जब रूह दुनिया से परवाज किया है तो उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीका का हुजरा था, वहां पे नबी की रूह परवाज किया और वहीं पे नबी को दफन किया। आप तवज्जो है ना, अब बात आ गई ना कि नबी दफन है अपने घर में, नबी दफन है अपने घर में, नबी दफन है अपने घर में। जिस हुजरे में दफन है वो हुजरा बीबी का नहीं, नबी ने बीबी की तरफ मंसूब किया था। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। भाई मैं अर्ज करूंगा वो जो हुजरा नबी ने अता किया, क्या बीबी मैके से लेके आई थी? इख्तलाफी बात नहीं है, दलील देने का मुझे हक है, दलील दूंगा है। बीबी मैके से नहीं, अच्छा खरीद भी नहीं किया, नबी ने मंसूब किया कि इस हुजरे में आप रहेंगी, आप रहेंगी। उस हुजरे में नबी है दफन, तो गोया नबी दफन है अपने घर में। जुमला पहुंच गया तो इसका सवाब मुशर्रफ अशरफ के वालिद मोहतरम की रूह को पहुंचेगा। नबी दफन है अपने घर में। कुरान कह रहा है जो नबी तक जाना चाहे पहले नबी से इजाजत ले। भाई अगर अब मैं वहां पे दफन होना चाहूं तो पहले इजाजत की जरूरत है।
ज़माने से कोई दफन होना चाहे वहां पे तो पहले नबी की इजाजत जरूरी है। कुछ समझ रहे हो ना? इजाजत है नहीं। अगर इजाजत के बगैर दफन हम हो जाएंगे तो फिर काबज कहलाएंगे, मोमन नहीं कब्जा करब कहलाएंगे। नबी दफन है अपने घर में। अच्छा, अल्लाह ने कहा खबरदार, नबी के घर उस वक्त तक दाखिल ना होना जब तक नबी तुम्हें इजाजत ना दे। अच्छा, नबी ने इजाजत दी तो फिर दाखिल हो गए, जब नबी ने इजाजत नहीं दी तो दाखिल नहीं हो सकते। नबी ने कहा मेरे घर में दाखिल हो तो हो जाओ। अच्छा, होना किस काम के लिए है? उस दौर के कामों को भी सामने रखा। फरमाया कि नबी के घर उस वक्त तक दाखिल न हुआ करो जब तक तुम्हें खाने के लिए बुलाया न जाए। बड़ी बारीक बात, बड़ी बारीक बात, बड़ी बारीक बात। जब तक मुझे अब खोलनी पड़ेगी ये बात, बुजुर्ग गर्मी महसूस कर रहे हैं। भाई देखिए ना, नबी के घर उस वक्त तक न जाना जब तक नबी तुम्हें खाने की इजाजत न दे दे। इसका मतलब है लोग नबी के घर खाना खाते थे। कुरान है, कुरान, रवायत मैंने नहीं पढ़ी, मैंने कोई वाकया नहीं सुनाया, मैंने कुरान की आयत पढ़ी। कुरान ने कहा है लोगों, नबी के घर उस वक्त तक न जाना जब तक नबी तुम्हें दावत न दे दे, जब तक नबी तुम्हें खाने के लिए न बुला दे। और फिर फरमाया गैर मुस्तानसीन अले हदीस, वहां बैठ के गप्पे न लगाने लग जाना। कैसी अक्कासी की है कुरान ने, वहां बैठ के सदा सलामत रहे, वहां बैठ के गप्पे न लगाने लग जाना। बल्कि वहां से क्या है, जब खाना खा लो, इज़ा तैमतुम फंतशिरू, कुरान की आयत है। बाइज़ा सूरह अज़ाब कुरान की आयत, फरमाया बाइज़ा तैमतुम फंतशिरू वला मुस्तानसीन अले हदीस, जब वहां खाना खा लो तो वहां से मुंतशिर हो जाना, वहां बैठ के गप्पे न लगाना। इसका मतलब है उम्मत मोहम्मद के घर खाना खाने जाती, वहां बैठ के गप्पे लगाते, अल्लाह को पसंद नहीं आया, कहा यहाँ से चले जाया करो। तो नबी खिला रहे हैं उम्मत को, खिलाता वो है जिसके कुछ पल्ले हो। फिर ये जुमला मेरी समझ में ना आया कि आज जो कहते हैं मेरा सलाम उस पे जिसके घर कख न था। सबको सलामत रखे। कुरान तस्दीक कर रहा है कि लोग नबी के घर खाना खाते, वहां बैठ के गप्पे भी लगाते, इधर उधर की ऊट पटांग की बातें भी करते। अल्लाह ने कहा चले जाओ। इसका मतलब कन्फर्म बात है कि उम्मत खाना खाती थी। खाना तो ही खिलाता है जिसके कुछ पल्ले हो। चलो मैं अपनी जबान में कहूँ, खाना चौधरी खिलाते हैं, हमारे बंदे के बस में तो अपना खाना नहीं है। नबी के घर खाना खाना। अच्छा, फिर इस आयत को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया फ़इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराए हिजाब ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना। फरमाया जब तुम नबी के घर कुछ मांगने के लिए जाओ तो घर के पर्दे से आगे जाके कुछ न लेना, और ना ही कोई नबी की अज़वाज में से पर्दे से आके कुछ आगे अता करे, बल्कि पर्दे के पीछे रह के मांगना, और वो भी पर्दे के पीछे रह के अता करे। ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना, ये पर्दे के अंदर तो उनका रहना और पर्दे के बाहर तुम्हारा रहना, इससे नबी की अज़वाज के भी और तुम्हारे दिल भी ताहिर रहेंगे, पाक रहेंगे। अब तर्जुमा मैंने सुना दिया, अब तर्जुमा तो नतीजा देना है कि अगर नबी की अज़वाज पर्दे से बाहर आके कुछ अता करती हैं तो इसका मतलब है उनका दिल नजस हो जाएगा। कुछ मैं अर्ज कर रहा हूँ, नबी की अज़वाज में कुरान की आयत है ना, फरमाया फ़इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराए हिजाब ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना, कि जब तुम नबी के दरवाजे से कुछ मांगने जाओ तो नबी की अज़वाज कुछ अता करे तो वो भी पर्दे के अंदर रहे, तुम भी पर्दे के बाहर रहो। ये नहीं कि तुम पर्दे के अंदर चले जाओ, अगर तुम पर्दे के अंदर चले गए तो तुम्हारे दिल नजस हो जाएंगे, अगर कोई बाहर आ गई तो उसका दिल नजस हो जाएगा। अरे जो घर का पर्दा हटा के उम्मत को कुछ देगी, कुरान कहता है उसका दिल नजस हो जाएगा जो घर को छोड़ के मैदान में उतर आए। सलामत रहे, मौला को सलामत रखे।
जो घर को छोड़ के मैदान में, फरमाया खबरदार नबी के घर न जाना जब तक इजाजत न मिले। अच्छा एक मैं बात अर्ज करूं, हमारा नबी पड़ा है या मूसा पड़े हैं? माशाल्लाह हमारे नबी पड़े हैं ना। अली इल्म का दरवाजा है, मेरा नबी इल्म का शहर, अली इसका दरवाजा। अब ये दरवाजा से इनमें रहेगा तो बात पहुंचा सकूंगा। हमारे नबी पड़े हैं, मूसा पड़े नहीं। बस मैं तो इतना जानता हूं कि मूसा तूर पे किताब लेने गए, हमारा नबी जहां था वहीं पे कुरान आया है। मूसा कुरान ले अपनी तौरात लेने के लिए गए, हमारा नबी जहाँ पे था वहाँ पे सूरह अल-हम्द आया। जहाँ हमारा नबी था वहीं सूरह ताहर आया। जहाँ हमारा नबी था वहीं सूरह मुज़म्मिल आया। जहाँ हमारा नबी था वहीं सूरह क़ाफ आया। जहाँ हमारा नबी था वहीं सूरह ताहर आई। जहाँ हमारा नबी था वहीं सूरह बकर आई। जहाँ हमारा नबी था वहीं सूरह आले इमरान आई। मेरी तरफ तवज्जो रहे कि जुमला कीमती हदिया करने लगा हूँ। मतलब सबको सलामत रखे, जुमला लेके जाना भी आए, यहाँ से झोलियाँ फैला के बैठना। जहां हमारा नबी है वहां कुरान उतरा है। जहां हमारा नबी है वहां सूरह कौसर चल के आया है। जहां हमारा नबी है वहां सूरह इखलास चल के आया। जहां हमारा नबी है वहां सूरह नास चल के आया। जहां हमारा नबी है वहां सूरह फलक चल के आया। जहां हमारा नबी है वहां सूरह शम्स चल के आया। पूरा कुरान वहां पे चल के आया जहां हमारा नबी है। हमारा नबी बस दो चीजें लेने गया है, काबा में अली को भाई बन के लेने गया या खदीजा के घर दूल्हा बन के गया। मौला सबको सलामत रखे। हमारा नबी तो बस दो चीजें लेने गया, पूरी तारीख की जिम्मेदारी दो चीजें, या तो काबा में भाई बन के अली को लेने गया या सेरे बांध के दूल्हा बन के खदीजा को लेने गया। इनको लेने गया है। हमारा नबी बड़ा। अच्छा अल्लाह ने कुरान में फरमाया, भाई देखना हमारा नबी बड़ा है ना, हमारा नबी बड़ा, मूसा छोटा। लिल्ला तवज्जो, जिस जुमले के लिए आपको ज़हमत दी है, जुमला ज़ाय हुआ तो दुख लेके जाऊंगा। पूरी मजलिस इस जुमले के गिर्द घूम रही है। फरमाया हमारा नबी अफसल, मूसा छोटा। मूसा छोटा, बात तय हो गई ना। हमारा नबी, लिल्ला तवज्जो, हमारा नबी अफसल, मूसा छोटा। अब कुरान उठाओ, कुरान कह रहा है बनी इसराइल को इरशाद किया कि बनी इसराइल मूसा के बनाए हुए दरवाजे से, बाबे हित्ता से, हित्ता तुम कह के गुजर जाओ, सनगफिर लकुम खतायाकुम, हम तुम्हारी गलतियां माफ कर देंगे। अरे जब मूसा का छोटा दरवाजा उम्मत को बख्शवाता है, मोहम्मद का तो बड़ा दरवाजा। नारे तकबीर। खालिक का नाम बहुत बुलंद है। किबला साहब हक अदा कर रहे हैं, आप भी हक अदा कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। सलामत रहे मौला, सबको सलामत रखे। मौला सबको सलामत रखे। मेरी जो टूटी फूटी बातें आप समाप्त फरमा रहे हैं, मौला सबको इज्जत दे। मूसा का कुरान की आयत है ना, कुरान के नस से बात कर रहा हूँ। है बाबे हित्ता से कहा तुम गुजर जाओ, हित्ता तुम कह के हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे। और अली तो मोहम्मद का दरवाजा है, जो मूसा के दरवाजे से गुजरा वो बख्शा गया, तो जो मोहम्मद के दरवाजे से गुजरे है। अच्छा अल्लाह ने कहा नबी के घर। अच्छा ये घर जो है, इन घरों की अजमत के बारे में अल्लाह ने फिर कुरान में फरमाया। अब सूरह नूर में अल्लाह ने इरशाद किया फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फी हस्मुहु व युसब्बिहु लहू फिहा बिल गुदुव्वि वल आसाल। फरमाया जिन घरों में किंदील रोशन कर दी गई है उन घरों को बुलंद रखो। तवज्जो है ना, कुरान की आयत है, जिन घरों में किंदील रोशन कर दी गई है उन घरों को बुलंद रखा जाए। युज़करा फी हस्मुहु, और उसमें अल्लाह का इस्म तिलावत किया जाए। जिन घरों को, शायद मैं बात समझा नहीं सका, जिन घरों में किंदील रोशन कर दी गई है उन घरों को बुलंद रखा जाए, उन्हें मिसमार न किया जाए। अच्छा माजरत के साथ हदीस बीच में ले आते हैं। अब हदीस सुनाऊंगा ना तो फिर शायद मैं बात समझा सकूं। घरों को बुलंद रखा जाए, जिन घरों में किंदील रोशन कर दी गई है, ये आयत का तर्जुमा है।
आयत का तर्जमा। अब तफसीर दुर्र मंसूर में ये हदीस मौजूद है कि जब ये आयत नाज़िल हुई, लम्मा नाज़लत हाज़िहिल आया, जब ये कुरान की आयत नाज़िल हुई, यही जो अभी मैंने पढ़ी है, फी बुयूत नाज़िल वाली, जब ये आयत नाज़िल हुई, कामा राजुलन, हजूर की महफिल से एक बंदा खड़ा हो गया, फकाला या रसूल अल्लाह, उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, मल मुराद मिनल बुयूत, इन घरों से कौन से घर मुराद है? सदा सलामत रहो, सदा सलामत रहो, बात थोड़ी सी लंबी है, मुझे टाइम देना। इन घरों से कौन से घर मुराद है? फकाला रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, फल मुराद मिनहु बुयूतुल अंबिया, इससे मुराद अंबिया के घर है, अंबिया के घर है, इससे मुराद, अब बात समझ दिया ना, इससे मुराद अंबिया के घर है। फकाता राजुल, तफसीर दुर्र मंसूर वाला कहता है वो बंदा बैठ गया, इतना जवाब लेके तो बंदा बैठ गया। तो काम अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, और खड़े होके किया क्या? अब बात है जिसके लिए जहमत दिया है। जब खड़े हुए, खड़े होके किया क्या? फ़इशारत इला बैत अली व फातिमा, मौला तुम्हें सलामत रखे, मौला सलामत रखे। पहले साथी ने पूछा ना कि इन बुयूत से कौन से मुराद है घर, तो नबी ने कहा अंबिया के घर मुराद है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खड़े होके करते क्या है? तो इशारत इला बैत अली व फातिमा, अली और बतूल के घर की तरफ उंगली का इशारा किया, और इशारा करके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अहाज़ा बैतुन फी बैतिहिम, क्या ये घर उन घरों में शामिल है? मौला सलामत रखे। बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, शायद मुझे समझाना नहीं आया, बहुत बड़ी बात थी भाई। बात थी नबियों के घरों की, रसूल ने कहा ना नबियों के घर मुराद है, बात थी नबियों के घरों की। इस घर के जिक्र की जरूरत क्या थी? कुछ जाग रहे हो या नहीं? इस घर के तज़किरे की जरूरत क्या थी? यहाँ पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें अपना अकीदा बता रहे हैं कि मेरे नजदीक अली और बतूल का घर नबियों के घरों जैसा है। हमारे नजदीक नबियों के घरों जैसा है। अच्छा, हुजूर ने फरमाया था ये घर नबियों के घरों जैसा है? नबी ने क्या इरशाद किया? नबी ने आगे से इरशाद, कोई गर्मी ज्यादा तो नहीं ना होगी? थोड़ा सा हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी, सदा सलामत रहे। मौला आप सबको सलामत रखे। मैं मुतमईन हूं कि मेरी टूटी फूटी बातें आप समाप्त फरमा रहे हैं कि ये घर उन घरों में शामिल है। यहीं पे बात है ना, पूरी तवज्जो। ये घर सहाबी का ये फरमान कि ये घर उन नबियों के घरों में है। नबी ने क्या इरशाद किया? नबी ने फरमाया बल मिन अफाज़लिहा, बल्कि ये घर उन घरों से अफजल है, ये घर उन घरों से अफजल है। अच्छा, बात आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी बात। ये घर उन घरों से अफजल, यहाँ तक हदीस। अब मैं इल्तिजा करता हूँ, आगे तशरीह करता हूँ हदीस की, कि जब नबी ने इरशाद फरमाया, बात मुझे बड़ी दूर लेके जानी है, बड़ी दूर। जब नबी ने इरशाद किया कि इस बुयूत से मुराद अंबिया के घर है, अंबिया के, ये नहीं कहा कि मेरा घर, लिल्ला दिमाग आंखें कान मेरी तरफ रखना, मैं बात पहुंचा सकूंगा। ये नहीं कहा कि मेरा घर ना, बल्कि कहा अंबिया। अंबिया है जमा, यानी आदम से लेकर मेरे तक सारे घर मुराद है। अब बुखारी अर्ज करता है कि जब नबी ने कहा कि इन घरों से मुराद अंबिया के घर है, उस वक्त आदम का घर कहाँ था? नहीं यार, मुझे लुत्फ नहीं आ रहा। जैसे आप समाप्त फरमा रहे हैं ना, शायद मुझे समझाना नहीं आता, आप कोशिश करें बात को समझने की। जब नबी ने कहा इन घरों से मुराद अंबिया के घर है, आदम का घर कहाँ था? जमीन पे नहीं था ना, कुछ सारी हिला देना। अच्छा, हजरत नवाश का घर कहाँ था? हजरत शीश का घर कहाँ था? हजरत मलाइल का घर कहाँ था? या रसूल अल्लाह, घर है नहीं। कुछ जाग रहे हो ना, कुछ जाग रहे हो ना? बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं आपको रोक रहा हूँ। बहुत बहुत कीमती बात है। मौला आपको सलामत रखे। लिल्लाह, इस बात पर तवज्जो रखना।
या रसूल अल्लाह, नबियों के घर है नहीं, आप कह रहे बुलंद रखा जाए। तो फरमाया आगे चलो, जो नबी जिस चार दीवारी में रहे वो चार दीवारी के अंदर होता है उसका घर। जब ज़ाहिरी जिंदगी के बाद वो दुनिया से चला जाता है तो जिस कब्र में है, नहीं गर्मी लगता ज्यादा हो गई है, जिस कब्र में है वो कब्र है उसका घर, वो कब्र है उसका घर, वो कब्र है उसका घर। अल्लाह ने कहा उन घरों को बुलंद रखा जाए, और नबी ने क्या कहा कि ये घर उन घरों से अफजल है। पता चला कि नबियों की कब्रों पे जाना भी इबादत, अहले बैत की कब्रों पे जाना भी इबादत। नबियों की कब्र को भी बुलंद रखा जाए और इन कब्र को भी बुलंद रखा जाए। फरमाया इन घरों को मिसमार न करना, इन पे बुलडोजर न फेरना, इनको बुलंद रखना है। यहाँ पे सुबह शाम जिक्र करना है। और उम्मत ने क्या सिले दिए, जिस घर के बारे में कुरान ने कहा है कि ये घर बुलंद रखा जाए, इन घरों को बुलंद रखा जाए, उम्मत उसी दरवाजे पे आग लेके आ गई। सिवाय गमे हुसैन के कोई गम न देखो। जिन घरों को बुलंद रखने का हुक्म था, उम्मत ने उसी घर को जला दिया। अभी मेरे भाई जाकर मुझसे पहले बार बार मेरी तरफ इशारा कर रहे थे। मैं गुजारिश करूँ आलमाना जिम्मेदारी से कि ये जो रवायात हम तक पहुँची है ना, ये हमने कहाँ से ली है? ये जो किताबें हम तक पहुँची है ना, करबला के वाक़यात, ये दो तरीके से हम तक पहुँची हैं। पहला तरीका कि जब सादात वापस आए हैं ना, सादात ने आके बयान फरमाया कि हमारे साथ ये सितम हुए। और दूसरा इस नहज से भी हमारे पास पहुंची कि जब मुख्तार ने कातलों को गिरफ्तार किया, मुख्तार उनको गिरफ्तार करते थे, फिर उनसे एतराफ़े जुर्म लेते कि तूने क्या सितम किया था, फिर उसको सजा देते थे। तो ये दूसरा तरीका ये है, इस तरीके से ये रवायात हमारे तक पहुंची। और मैं अर्ज करूं, एक बार मुख्तार ने ना एक कातल गिरफ्तार किया। वो मुख्तार की बारगाह में आया। मुख्तार ने पूछा, बता तूने कौन सा सितम किया था? बड़े नाजुक मिजाज हो, इंशाल्लाह इबादत मुकम्मल हो जाएगी। कहा तूने कौन सा सितम किया था करबला में? खुदा के लिए तवज्जो रखना। मैं अक्सर अर्ज करता हूँ कि फजाइल जैसे मर्जी है सुना करो, मसायब में कोशिश किया करो, एक तो आंसू आ जाए, इबादत हो जाए। मुख्तार ने पूछा, बता तूने करबला में क्या किया था? वो कहता, अमीर शाह मुझे माफ़ करना। कब माफ़ नहीं करना, जुर्म बताना पड़ेगा। इसने कहा मैंने जुर्म ये किया था कि जब शाम गरीबा लुट मची थी ना, मैंने सानिए ज़हरा के पर्दे को हाथ लगाया था। मैंने सानिए ज़हरा के पर्दे को हाथ लगाया। बखुदा मुख्तार ये कह के बेहोश हो गए। मुख्तार ने कहा, कहाँ तेरा नजस हाथ, कहाँ वो तहारत की चादर? अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह। सिवाय गमे हुसैन के कोई गम ना देखो। मौला सारे जिक्र का सवाब चौधरी अशरफ साहब की रूह को पहुँचाए, और जो जो इस घर के मरहूमीन है मौला उनके दर्जात बुलंद करे। आप मौला सबको सलामत रखे। मुख्तार की महफिल में एक बंदा बैठा था, उसने ये वाक़या आंखों से देखा। यहाँ से उठ के उसने अपना मदीने का सफ़र किया, सैयद साजिदीन की खिदमत में आया। जब सैयद साजिदीन की खिदमत में आया ना, मौला ने पूछा कहाँ से आया है? अर्ज़ किया मौला कूफे से आया हूँ। कहा अच्छा मुख्तार आजकल क्या कर रहा है? कहा मौला आपके कातलों को, आपके दुश्मनों को गिरफ्तार करते हैं, एतराफ़े जुर्म लेते हैं, उन्हें कत्ल करते हैं। मौला ने फरमाया अच्छा इतना बता, क्या असगर का कातिल गिरफ्तार हो गया? अजरकुम मिनल्लाह। मौला तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी औलाद को मौला सलामत रखे, भाई मुशर्रफ को मौला सलामत रखे।
اس کے پورے خاندان کو. بہت بڑی بات ہے. ہم انسان ہیں, ادھر ادھر بھی دماغ جاتے ہیں, طرح طرح کے خیالات بھی آتے ہیں. سید و ساجدین 35 سال خون کے آنسو روتے رہے. جب کہا نا کہ مولا نے کیا اصغر کا قاتل گرفتار ہوا ہے, سیل نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا آپ نے اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا, سخی حسین کے قاتل کا نہیں پوچھا جن کے دل میں قبر علی اصغر ہے. آپ نے سخی وفا کے قاتل کا نہیں پوچھا, جی اصغر کے قاتل کا کیوں پوچھا؟ مولا رو کے کہتے ہیں میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ جو ہرمل کا تیر چلا ہے نا وہ اصغر کے گلے پہ ہی نہیں چلا, ہمارے دل پہ بھی چلا ہے. ہم سادات کا جگر چیر گیا ہے. اجرکم اللہ. بس قدردان بیٹھے ہو, قدر فرماؤ گے. یہ بندہ سرکار کی محفل سے اٹھا واپس کوفے آیا. اب جو آیا نا مختار کے دربار میں, اب جو مختار کے دربار میں آیا نا سامنے ہرمل کو گرفتار دیکھا. اب ہرمل کو گرفتار دیکھ کے نا اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مختار نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن اس وقت تکبیر بلند کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بندہ عرض کرتا ہے مختار میں ابھی کو مدینے سے آ رہا ہوں, سید و ساجدین کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. مولا نے پوچھا تھا ہمارے اصغر کا قاتل گرفتار ہوا ہے یا نہیں؟ آپ اسے سامنے دیکھا ہے نا تو مجھے مولا کے اس فرمان کو یاد کیا ہے میں نے. جب یہ جملہ مختار نے سنا نا, مختار جلدی سے اس لین کے پاس آئے کہ تُنے ظالم بتا تُنے کون سا ستم کیا تھا, آج بھی سادات کو نہیں بھولتا, تُنے کون سا ستم کیا؟ یہ کہتا مختار مجھے معاف کر. تب معافی نہیں ملے گی, جرم بتانا پڑے گا. بزرگ بیٹھے ہو, تمہید ختم, اب عبادت کر لینا. کہا جرم بتا. یہ کہتا امیر میں نے کربلا میں 3 تیر چلائے تھے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا میری ماں بہنوں کے پردے سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے کربلا میں 3 تیر چلائے تھے. کب بتا کون کون سے تیر چلائے تھے؟ مولا تمہیں سلامت رکھے. جملہ سماعت فرمانا. کون سے تیر چلائے تھے؟ اس نے کہا پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا جب حسن کا چھوٹا سا بیٹا حسین کی گود میں چھپ گیا تھا. تلواریں وہاں نہیں جا سکتی تھی, نیزے وہاں نہیں جا سکتے تھے. میں نے تیر کا نشانہ لیا, وہ حسن کا بیٹا حسین کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مختار کہتے جلدی بتا دوسرا تیر تو نے کب چلایا؟ دوسرا تیر تو نے کب چلایا؟ للہ جنہوں نے عبادت کرنی ہے, دوسرا تیر تو نے کب چلایا؟ کامیر دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین اپنے چھوٹے بچے کو فوجوں کے سامنے لے کے آئے. کہا اس کو پانی پلاؤ. ساری فوج منہ دوسری طرف کر گئی. عمر سعد نے مجھے حکم دیا ہرمل اس کے کلام کا جواب دو. کہا اس وقت میں نے تیر کمان میں رکھا اور میں نے بچے کے گلے کا نشانہ لیا, بس تیر کا چھوڑنا تھا. بچہ حسین کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مختار کہتے ہیں بتا تو نے تیسرا تیر کب چلایا؟ بس آخری بات, تو نے تیسرا تیر کب چلایا؟ کہ امیر تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین زخموں سے چور گھوڑے پہ جھوم رہے تھے. اس وقت میں نے تیر کمان میں جوڑا, میں نے حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا, بس میرے تیر کا لگنا تھا پتول کی نشانی زین سے زمین کی طرف, اور آتے ہوئے کہا تیرا چکیا پیس کے پالنے والا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے.